امریکہ کہاں، ایران کہاں اور کہاں سے کہاں آ کر آپ نے یہ دہشت پھیلائی ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اس کی مذمت ہونا چاہیے، اس کی نندا ہونا چاہیے۔ آج جو حالات ہیں، صرف بچوں کو مارا جا رہا ہے، اسٹیڈیم پہ بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ کو اگر مار دیں گے تو وہاں تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ امریکہ اسرائیل نے 48 گھنٹے میں بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ کروا دیا، لیکن ایران میں نہیں کروا پایا۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ کیوں؟ انڈیا کی میڈیا نے پوری دنیا میں اپنی رسوائی کرا دی ہے۔ جب آپریشن سندور چل رہا تھا، 2 منٹ میں لاہور قبضہ ہو، 3 منٹ میں یہ قبضہ ہو، 4 منٹ میں، اب ان کا کوئی بھروسہ نہیں رہا ہے۔ شیعہ قوم میں مرنے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ کیونکہ بچپن سے ہم جب کربلا کے واقعے کو سنتے ہیں تو شیعہ قوم کے لوگوں سے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے نان مسلم خامنہئی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں کہ 86 سال کا تھا، نہیں ڈرا، یہ 56 انچ، بس آگے آپ سمجھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، اس کو بھی ذرا سا سمجھائیے۔ میں آپ اگر یہی سوال میں اٹھا دوں کہ مارا نان مسلم بنگلہ دیش میں گیا، ہلڑ انڈیا میں کیوں مچ رہا ہے؟ ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی انسانیت کا خون ہوگا، جہاں پر انسانیت شرمسار ہوگی، جہاں مانوتا کو کچلا جائے گا، وہاں ہر ایک کو چاہیے احتجاج کرے، صدا احتجاج بلند کرے۔ ایران سے ہمارے تعلقات بڑے قدیمی تعلقات ہیں۔ ہمت ہونا چاہیے سامنا کرنے کی۔ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ شوق ویکت کرے، دیر آئے درست آئے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ نئے سپریم لیڈر بنائے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا جانکاری ہے؟ 25 سال سے وہ آغا خامنہئی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ جنگ بڑھتی جائے گی یا رکے گی؟ اب رکے گی تو کیا ایران اپنی کچھ شرطیں رکھے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ ابھی رکے گی نہیں۔ نمسکار، میرا نام حیدر عباس نقوی ہے اور آپ لوگ مجھ کو اس وقت دا سوتنتر پر دیکھ رہے ہیں۔ 28 فروری کو ایران پر حملہ ہوتا ہے، یو ایس اے، ٹرمپ اور اسرائیل حملہ کرتے ہیں۔ اس کو آتنکوادی حملہ کیوں نہیں کہا جا رہا اب تک، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت ایران کے کیا حالات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے برابر کی ونڈو میں مولانا سیف عباس نقوی صاحب ہیں، جن سے ہم اس وقت کے موجودہ حالات جانیں گے اور آگے کی بھی چرچا کریں گے۔ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ دا سوتنتر کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اس وقت آپ کے پاس کیا خبر ہے ایران سے؟ میں نے جتنے بھی بیان دیے سب میں 28 فروری کو ہونے والے حملے کو آتنکوادی حملہ کہا ہے، کیونکہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ایک سینٹنس کہا تھا، آتنکواد چاہے کسی روپ میں ہو وہ آتنکواد ہے۔ تو اب چاہے کوئی کنٹری آ کر آتنکواد کرے، ورنہ خود دیکھا جائے کہ امریکہ کہاں، ایران کہاں اور کہاں سے کہاں آ کر آپ نے یہ دہشت پھیلائی ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اس کی مذمت ہونا چاہیے، اس کی نندا ہونا چاہیے۔ آج جو حالات ہیں، صرف بچوں کو مارا جا رہا ہے، اسٹیڈیم پہ بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا کوئی بس نہیں چل رہا ہے۔ یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ کو اگر مار دیں گے تو وہاں تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ آپ ایک چیز ایران کی کوالٹی سمجھ لیے، خصوصیت، ایران کی قوم بڑی خوددار قوم ہے، غیور قوم ہے۔ 2 مہینے سے مستقل امریکہ اور اسرائیل چاہ رہا تھا وہاں تختہ پلٹ کرنا۔ امریکہ اسرائیل نے 48 گھنٹے میں بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ کروا دیا، لیکن ایران میں نہیں کروا پایا۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایرانی قوم جو ہے وہ اپنے رہبر کو چاہتی ہے، مانتی ہے۔ وہی مسئلہ آ کے سامنے، وہ یہ سوچے تھے کہ جیسے ہی ان کے رہبر کو شہید کر دیا جائے گا تختہ پلٹ ہو جائے گا، لیکن یہ الٹا ڈائل ہو گیا ان کا نمبر کہ وہاں ان کی شہادت سے متعلق ان کی حمایت میں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں۔ ایک چیز ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ جس طرح سے میڈیا ہے، بھارت کا میڈیا جو گودی میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا ہے،
वो इस तरह को परोस रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है कि पूरा एक हंट हुआ है, उनको ढूँढा गया है, उनको ट्रैक किया गया है और वो बंकर के अंदर छुपे हुए थे, कितने गहरे बंकर के अंदर थे और वहाँ पर जाकर हमने उनको खत्म किया है। इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं जो बहुत सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसको ज़रा दर्शकों को बताइए? देखिए, जहाँ तक इंडिया के मीडिया की बात की जाए, तो मैं जो हूँ बहुत दिनों से हर प्लेटफ़ॉर्म पे जाके टिकट माँग रहा हूँ कि हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी का टिकट दे दो। क्योंकि वो हमारे भारत में आ चुके हैं, कब्ज़ा हो चुका है इंडिया का। लेकिन अभी तक कोई हमको टिकट नहीं दे रहा है। इंडिया की मीडिया ने पूरी दुनिया में अपनी रुसवाई करा दी है, समझ गए? जिस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 2 मिनट में लाहौर कब्ज़ा और 3 मिनट में ये कब्ज़ा और 4 मिनट में, अब इनका कोई भरोसा नहीं रहा है। हर इंसान जो है इंडिया को माइनस प्लस करके उसके बाद कैलकुलेट करा के 2-4-10% निकाल लेता है। ये इंडिया की मीडिया का हाल हो गया है। अभी इंडिया की मीडिया को अगर आप देखिए, उनको सिर्फ जो वो चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके मुँह से सुनेंगे। अगर आपने हक बात बता दी, तो वो लड़ने के लिए आमादा हो जाएँगे। वो आपको बुरा-भला कहने के लिए आमादा हो जाएँगे। गलत-सलत अल्फाज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे। जबकि हमारे देश की जो शान थी, वो मीडिया से थी क्योंकि मीडिया हमारी निष्पक्ष रहती थी। मीडिया हमारी स्वतंत्र रहती थी। मीडिया हमारे क्या सरकारें बनाती भी थी और सरकारें गिराती भी थी। सच बात कहती थी। लेकिन इधर कुछ सालों से अब आप देख लीजिए, ये आप तो इंडिया में रह के गोदी मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर वाले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें, मैं तो बाहर जाता आता रहता हूँ। वहाँ इस्तेमाल इस लफ्ज़ को किया जा रहा है गोदी मीडिया। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने किस तरीके से अपनी रुसवाई का हाँ, पैसा पैदा कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बदनाम होके पैसा पैदा करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो उस बात की क्या पुष्टि है कि वो बैंक के अंदर थे, बहुत गहरा वो था, उसके अंदर किया था, लेकिन जो खबर है, जो हमें पता चल रहा है कि मुझे नौ पे मिलियन लोगों के लिए बंकर बनाओ, तो मैं भी बंकर में चला जाऊँगा। क्योंकि एक बात समझने की ज़रूरत है, हम जिस कौम से हैं, जो शिया कौम है, शिया कौम में मरने से कोई डरता नहीं है, ये आप याद रखिए। क्योंकि बचपन से हम जब करबला के वाक़ये को सुनते हैं और उस करबला के वाक़ये को सुनने में बच्चों की कुर्बानी, बूढ़ों की कुर्बानी, कैसे अपनी जानों को निसार करना, माँओं को, औलादों को निसार करना, तो शिया कौम के लोगों से मौत का खौफ इनके दिलों से निकल जाता है। और फिर तो आगाए खामनाई, जो उनकी उम्र 86 साल की थी, आजकल एक क्लिप चल रही है, उसमें वो वाज़े तौर के ऊपर कह रहे हमारे पास जो कुछ है, वो इसी ईरानी कौम का दिया हुआ है, इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। अगर मैं चला गया, तो एक के जाने से काम नहीं रुकेगा। और साहब ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस अब जो जंग को शिया सुन्नी में भी बदला जा रहा है और कई जगह कहा जा रहा है शिया सुन्नियों की आपस की ये लड़ाई है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं, हमले यूएस बेस पर किए जा रहे हैं, जैसा कि ईरान ने पहले कहा था, लेकिन उसका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें शिया सुन्नी एंगल आ गया है। देखिए, ये हमारे इंडिया मीडिया का कमाल है, समझ गए? हमारे इंडियन चैनल जो हैं, इस चीज़ को लेके आए हैं शिया और सुन्नी। मैं आपको बहुत ही बात बता रहा हूँ, शायद आपने भी कहीं देखा होगा, एक आवाज़ एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ कोई शिया सुन्नी का फ़र्क नहीं है। यहाँ बिल्कुल भाई-भाई बन के क्योंकि ये मसला जो है हक और बातिल का है, ज़ालिम और मज़लूम का है। कोई भी मुसलमान ज़ालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जो रसूल का कलमा पढ़ने वाला है। जो उम्मत रसूल है, जो कुरान की तालीम से आशिना है, वो कैसे किसी ज़ालिम को बर्दाश्त कर लेगा? लिहाज़ा पूरी मुस्लिम कौम शिया अब मैं तो मुस्लिम को कह रहा हूँ, मैंने तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ नॉन मुस्लिम। आप लोग मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कैसे नॉन मुस्लिम खामनाई साहब की हिमायत कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि वो शख्स और तंज कर रहे हैं कि 86 साल का था, नहीं डरा, ये 56 इंच, बस आगे आप समझ लीजिएगा। और साहब एक ये बात भी निकल रही है कि ईरान में होता है और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसको भी ज़रा-सा समझाइए?
देखिए ऐसा है कि ईरान में जब अभी रईसी साहब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और इससे पहले और भी ये आगा खामनाई का मसला ये वो रिलीजियस भी लीडर थे, ठीक है। वो एक कंट्री के थे, उनके सर पे अमामा था, वो धार्मिक व्यक्ति भी थे, ठीक है। तो उनको पूरी दुनिया में शिया जो है फॉलो भी करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी का कोई मैं आप अगर यही सवाल मैं उठा दूं कि हमारा नॉन मुस्लिम बांग्लादेश में गया, हुल्लड़ इंडिया में क्यों मच रहा है? एक दूसरे से कनेक्शन होता है, हमारा मजहबी अकीदा होता है, अकायद अकीदत ये सब होती है। अगर कोई हिंदू बांग्लादेश में मारा जाता है, हम यहाँ आवाज उठाते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं शिया मारा जाता है, पाकिस्तान में जनता मारी जाती है शिया, हम आवाज उठाते हैं। अभी जो इस्लामाबाद की मस्जिद में शियों की मस्जिद में बम फोड़ा, हमने सदा एहतिजाज बुलंद की। अभी पहलगाम का हमला हुआ था, हमने सदा एहतिजाज बुलंद की। तो जहां पर भी इंसानियत का खून होगा, जहां पर इंसानियत शर्मसार होगी, जहां मानवता को कुचला जाएगा, वहां हर एक को चाहिए एहतिजाज करे, सदा एहतिजाज बुलंद करे। वह सब आम जनता भारत की, मुसलमान हो या जो सेकुलर लोग हैं, सब सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन वहीं पर देश के प्रधानमंत्री ने एक अफसोस का ट्वीट तक नहीं किया है। तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए मैं अभी आपके चैनल पे न्यूज करे दे रहा हूं, देखिए कि अभी अभी विदेश सचिव जो हैं ईरानी एम्बेसी गए थे और उन्होंने शोक व्यक्त किया है, ठीक है। कई दिनों से बहरहाल अपोजिशन इस बात को कह रहा था और ये भी अब प्रॉब्लम ये आ गई है चूंकि लेट हो गए हैं, लिहाजा आप करें क्या? क्योंकि देखिए ईरान से हमारे ताल्लुकात बड़े कदीमी ताल्लुकात हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी के आदर्श रहे, बीजेपी वालों के लिए आदर्श रहे, उन्होंने ईरान के सिलसिले में क्या कहा? खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये अभी कुछ साल पहले ईरान गए थे तो आगा खामनाई से मिले थे। जब हमारा मुल्क इस बात के ऊपर कहता है कि कहीं पर कोई घटना घटेगी तो जो भी मजलूम है उसकी हिमायत करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसको सब दुनिया समझ रही है और देख रही है। अगर यही बात मैं कह दूं कि आखिर 65-70 दफा ट्रम्प कह चुका है कि इस्लाम वो जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी वो मैंने रोकी, अभी तक हमारे यहाँ से क्यों नहीं कोई सीना चौड़ा करके खड़ा हो पाया कि तुम झूठे हो? समझ गए? हिम्मत होना चाहिए सामना करने की। अच्छा अगर किसी का कोई कोर दबी होती है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहरहाल आज इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अभी विदेश सचिव जो है वो गए ईरानी एम्बेसी और इन्होंने वो जो शोक की किताब होती है, कॉपी होती है, उसके ऊपर सिग्नेचर भी की है और वहां इन्होंने शोक भी व्यक्त किया है। ठीक है प्राइम मिनिस्टर क्योंकि देर हो गई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो शोक व्यक्त करे। देर आए दुरुस्त आए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर देर हो गई है हो जाने दीजिए। एक पार्टी और थी जिसने 3 दिन पहले जो है वो बड़ा घुमा फिरा के ट्वीट किया था, जब हमने आवाज उठाई कि हम इस पार्टी का बाइकाट करेंगे, उस पार्टी ने कल ट्वीट कर दिया खुले खुले अल्फाज में कि खामनाई साहब की शहादत और ईरान पे हमले की हम निंदा करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से, अभी भी अगर जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आ जाता है तो मैं ये समझता हूं। जबकि एक बात समझना चाहिए, इस वक्त जो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है उससे हमारा बड़ा लॉस होने वाला है। आप कहेंगे मेरा क्या लॉस होना है? हमारा कितने तेल फंसा हुआ है हुर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से, हमारे क्या कितनी जीडीपी के ऊपर नुकसान पहुंच रहा है, कितनी शेयर बाजार हमारा गिर के कितने लाख करोड़ का हमारा नुकसान हो चुका है। और उसके अलावा ये गल्फ में 90 लाख इंडियन है जो नौकरी कर रहे हैं। इन लोगों का भविष्य खतरे में आ गया है, तो हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है इस जंग से। और मैं ये समझता हूं कि जो अमेरिका और इजराइल ने किया है इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को आवाज उठाना चाहिए कि आप लोगों ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है।
और सब एक ये बात भी समझना चाहेंगे कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि वहाँ की ईरान की आवाम लोग परेशान हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, हमला कर दिया जाता है, उसके बाद इज़राइल का ये नेतन्याहू खुलकर कहता है कि तुम लोग सड़कों पर आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ट्रम्प कहते हैं, लेकिन कोई बगावत नहीं दिखती है। तो ये तो साफ-साफ प्रोपेगेंडा अब नज़र आने लगा है, अब तो दुनिया क्यों खामोश बैठी है? मैंने इब्तिदा में यही बात तो कही थी कि ये समझ रहे थे कि लीडरशिप को मार के हम वो तख्ता पलट करा देंगे, लेकिन वहां रॉन्ग नंबर डायल हुआ। देखिए, हर मुल्क के अंदर 100% जनता अपनी गवर्नमेंट से सहमत नहीं होती है। क्या हिंदुस्तान के अंदर सब अपनी गवर्नमेंट से मुतमईन है? मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा लोग मुतमईन नहीं है, सर्वे कराया जाएगा तो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई आके खून खराबा करवा दे। ठीक है, ईरान में कुछ उन लोगों की जो ईरानी कौम है उसकी शिकायतें थी, क्योंकि अच्छा उसके भी जिम्मेदार, आप कहें जिम्मेदार इसलिए हैं ये क्योंकि इन्होंने ईरान पे सालों से पाबंदियां लगा रखी हैं। जब पाबंदियां लगा रखी इन्होंने ईरान पे, तो हर चीज, करेंसी ईरान की टूटी है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो उसके जिम्मेदार यही अमेरिका इजराइल है। वहां नाराजगी हो सकती है हुकूमत से, महंगाई की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन जो पेश किया जा रहा है कि साहब वो लोग जो हैं खून खराबे पे, ऐसा मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपने एजेंट, अब इन्होंने क्या किया है, कुर्दों का सहारा ले लिया। अब ये कुर्द भेज रहे हैं और ये इलाकाई जंग कराना चाह रहे हैं, खाना जंगी, कि कुर्द लड़े। तो इराक के कुर्द और ईरान के कुर्द, इन दोनों का गठजोड़ करा के ये ईरान में खलफशार मचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये अमेरिका इजराइल की, देखिए, इनको इसीलिए शैतान बुजुर्ग नहीं कहा ईरान ने, ये शैतान बुजुर्ग हैं, इनकी चालें इसी तरीके की मुस्तकिल रहती है। और सब इस बीच में शियों को लेकर एक शहादत का शब्द बहुत घूम रहा है हर जगह और हर इंसान उसको एक अलग तरीका से परिभाषित कर रहा है। इस्लाम, शिया, इमाम हुसैन, शहादत क्या है? इसको ज़रा से समझा पाएँगे? देखिए, जहां किसी की मजलूमाना तरीके से किसी को कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, सीधी सी बात। मजलूमियत के साथ कत्ल कर दे वो शहीद हो जाता है, उसी को शहीद कहते हैं। और कैसे शहीद होता है भाई, यही शहादत है। किसी को मजलूमियत के साथ आप मार दीजिए, वो बेचारा शहीद हो गया। अब जहां तक शहादत की बात है, ये अपने अपने धर्म के अंदर शहादत को समझने की जरूरत है कि शहादत जो वर्ड है, इसको हम किस तरीके से समझते हैं। मैंने बताया अभी आपसे शहादत इमाम हुसैन का तस्करा, जब चौथे इमाम से पूछा गया, उन्होंने कहा गया कि शहादत तो आपकी मीरास है। तो शहादत तो मीरास है, हमको शहीद कर दिया जाए हमारे लिए कोई बुरी वो नहीं है, परेशानी नहीं है। शहादत तो मीरास है, और शहीद होना जो है ये एक नेमत है। जो ओरफा थे, जो ओलमा थे, जो फुकहा थे, ये दुआएं करते थे कि हमको शहादत नसीब हो, ऐसे बिस्तर पे लेट के मौत ना आए। और सब अभी जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? वो भी ज़रा-सा हमें बता पाएँ? देखिए, उनके लिए जानकारी यही है कि वो तकरीबन 20-22 साल से, बल्कि 25 साल से वो आगा खामनाई अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ शाना बशाना थे, और वो एक फौज का हिस्सा है, कुद्स फौज है या नाम भूल रहे शायद, उसके अंदर वो अहम रुकन भी रहे हैं, उसकी सरबराही भी कर रहे थे। और पिछले कई महीनों से वो जो मामलात चल रहे थे ईरान के अंदर, उसको भी देख रहे थे। तो यूं कहा जाए कि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, और इन्होंने अपने वालिद को काम को देखा भी है कि किस जज्बात के साथ इनके वालिद ने काम किया। मैं समझता हूँ ये ईरानी कौम के लिए एक बेहतर लीडर साबित होंगे, और पूरी ईरानी कौम को जो है, मैं समझता हूँ एक साथ लेकर मुल्क को आगे ले जाएंगे। मौलाना साहब, अब आगे के हालात के बारे में कुछ खबर है? जंग बढ़ती जाएगी या रुकेगी? अब रुकेगी तो क्या ईरान अपनी कुछ शर्तें रखेगा? क्या आपके पास कोई जानकारी है इसकी? मैं ये समझता हूँ कि जंग अभी रुकेगी नहीं। जो कंडीशन दिख रही है
وہ ابھی رکنے کی نہیں ہے ایک جنگ، کیونکہ جس طریقے سے پورے عرب کو، سب خاموش بیٹھے، پورے عرب کو اس نے جنگ میں جھونک دیا ہے، پورے عرب کو، سارے، چاہے دبئی ہو، چاہے ابوظہبی ہو، چاہے کویت ہو، چاہے بحرین ہو، قطر ہو، عمان ہو، جارڈن، سب کو اس نے جھونک دیا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جنگ کیسے روکی جائے۔ انہوں نے، میں اس دن ایک نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا، تو ایک آرمی کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایسے خطرات ہوتے ہیں تو ٹاپ لیڈرشپ سیکنڈ لیئر اور تھرڈ لیئر تیار کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ پہلے سٹیپ میں تمہیں اس کو یہ مارنا ہے، یہ کرنا ہے، دوسرے میں یہ کرنا ہے، تیسرے میں یہ کرنا ہے، چوتھے میں یہ کرنا ہے۔ ان لوگوں نے، امریکہ اسرائیل نے جب ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا تو اب جو سیکنڈ لیئر کی لیڈرشپ ہے وہ آزاد ہو گئی، کیونکہ اس کو جو لیڈر کہے گئے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فور، وہ اسی سیریل سے اس کو انجام دیتی ہوئی آگے بڑھے گی اور اسی پہ بڑھ رہی ہے۔ تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میزائلوں کی کس طریقے سے بارش کرے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے میزائل ابھی کچھ کمزور پڑ رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے یہ تھاڈ جیسے جو آئرن ڈروم ہے یا تھاڈ ہے، اس کے میزائل جو ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے $10,000 کے ڈروم سے ان کی 10 ملین والی وہ میزائل کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے مین اپنا جدید اور تازہ اسلحہ تو نکالا نہیں ہے، وہ تو ابھی نکلے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے بہت، اگر ایران کے پاس اتنی سمجھنے اور سوچنے، سہما بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایران باشعور ہوشیاری سے لڑ رہا ہے، اس کو معلوم ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے ہم تو کئی سال عراق سے لڑ چکے ہیں، وہ 9 سال تک جنگ، اور وہ ظاہری طور پر اگر آپ جنگ دیکھیے گا تو عراق صدام سامنے تھا، بیک پہ امریکہ ہی تھے اس کے، وہ ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ امریکہ ہی سے وہ جنگ لڑی تھی 8-9 سال۔ تو آج وہ اسی پلان سے آئے، ان کے پاس مہارت ہے، ان کو تجربہ ہے، اور اسی انداز سے آئے کہ 2-4 سال جنگ چلے گی، دیکھا جائے گا۔ مولانا صاحب، رمضان کے وقت میں یہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد عید بھی ہے، تو آپ جو لوگ عید منائیں گے تو کس طرح سے ہندوستان میں شیعہ لوگ عید منائیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ایران میں 7 دن چھٹی ہوئی تھی اور 40 دن کا سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر علماء نے 3 دن کا سوگ رکھا، ٹھیک ہے، وہ سوگ ختم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کو چھوڑ دیں اکیلا، ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے، ہمیں عید الفطر کی نماز بھی پڑھنا ہے، اور ہمیں انسانیت اور مانوتا اور ہیومنٹی کے خلاف جو یہ کام ہو رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے۔ تو میں نے دیش نہیں، دیش ودیش کے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کالی پٹی بازوؤں پہ باندھ کے نماز پڑھیں، اس سے نماز بھی آپ کی ہو جائے گی، احتجاج پرامن احتجاج بھی ہو جائے گا، اور آپ کا جو ہے ایرانی بھائیوں کے ساتھ جو 40 دن کا سوگ ہے اس میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ لہذا میں ہر ایک سے اپیل کروں گا کہ عید کے دن کالی پٹی باندھ کر نماز کا ہم سوگ کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کم سے کم ایک اجتماعی سوگ ہوگا پورے دنیا میں، عید کی نماز پوری دنیا میں ہوگی۔ اگر پوری دنیا میں اسی طریقے سے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا ہے، میری آواز کہاں تک جا رہی ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ طے ہے کہ انڈیا سے باہر بھی جا رہی ہے، ملکوں میں جا رہی ہے، تو اگر کالی پٹی باندھیں گے تو پوری دنیا میں ایک ساتھ کالی پٹی باندھ کے نماز پڑھیں گے، پرامن احتجاج پوری دنیا میں ہوگا۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے داسوتنتر کے لیے وقت نکالا۔ چلتے چلتے کچھ ہمارے آڈینس کے لیے، سب دیش دنیا آپ کو سن رہا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے تو؟ میں آپ کے ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیشہ کسی مذہب سے ہوں، کسی بھی ذات سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، آپ اپنے یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اس راستے کے اوپر چلنا ہے کہ جس راستے میں آپ مانوتا کو حفاظت کر سکے، بچا سکے۔
इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और ह्यूमैनिटी को सेव करें। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक को आज देख लेना चाहिए कि इमाम हुसैन को इसीलिए आदर्श मानता है, गैर कौमें भी इमाम हुसैन को आदर्श मानती इसलिए क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए अपने घर को कुर्बान कर दिया। लिहाज़ा मैं ये समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी जो है जीत इसी बात की है कि हम कर लें, बल्कि यूँ कहा जाए कि आज कोशिश करें मोहम्मद दीपक बनने की। शुक्रिया बहुत-बहुत। तो आप लोग स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए और जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत जुटाइए क्योंकि आज के दौर में आप सही होंगे तो देश हमारा सही होगा और हम लोग सही काम करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।